Hello everyone, this is your Bandini Salma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 10.2, right? And in today's session we are going to discuss how to construct triangles if we have given two sides and the angle included between them. Okay, so let's see it. So construction of a triangle when the lengths of two sides एंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन दैम आर नोन. अगर किसी ट्राइंगल में आपको दो साइड्स दे रखी हैं और उन साइड्स के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल आपको अगर दे रखा है तो ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स लर्न हेयर. सी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट द टू साइड्स पी क्यू इज इक्वल्स टू सपोज 5 centimeter and QR is equals to 6 centimeter and the angle between these two PQR if you have given 60 degree, then how to construct this triangle? As we have done in the first construction, first step is draw a rough sketch of the triangle of given measurement. So here the triangle is PQR. So suppose this triangle is PQR. So here QR is 6 centimeter and PQ is 5 centimeter and the angle PQR means PQR, this angle you have given 60 degree. So this triangle we have to construct. See, so रफ स्केच में हमें पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल साइड हमें कौन सी लेनी है, मीन्स बेस कौन सा लेना है, दैट इज क्यू आर. ओके, आप पी क्यू को भी बेस ले सकते हैं, ठीक है, तब आपका एंगल किस यहाँ पर आएगा. अगर आप इसको रोटेट करते हैं अगर इस तरीके से, सपोज हेयर पी क्यू एंड दिस इज आर. सो सी पी क्यू इज 5 centimeter and क्यू आर इज 6 centimeter. Then angle will be PQR means this is 60 degree. So this way you also can construct. Okay. So first we will, so the first step is draw a rough sketch of the given measurement. Then second step is draw side QR of 6 centimeter. So with the help of scale, we have drawn side QR of 6 centimeter. Now see, next at Q we have to construct angle 60. Okay, Q पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने 6th स्टैंडर्ड में सीख रखा है, तो यहाँ पर हमें कंपास यूज़ करना है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ड्रॉन साइड Q R of 6 centimeter with ruler. Okay, then we have to construct angle PQR that is of 60 degree. So for 60 degree we have to use compass of any convenient radius. Taking Q as center, you have to make an arc like this. Okay, of same radius you have to put this pointer tip at this point and make an arc of same radius like this. ओके, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या है, कन्वीनियंट रेडियस कंपास में लेना होता है और जिस पॉइंट पर हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसको सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना होता है. फिर उसी रेडियस का आर्क हमें, जहाँ पर ये आर्क इस इनिशियल लाइन को कट कर रही है उस पॉइंट पर आपको पॉइंटर की टिप लेनी है और सेम रेडियस का आपको एक आर्क लगाना है. ओके, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट, जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं. लाइक दिस. ओके, सो दिस इज आवर angle 60 degree. Okay, now we have to decide this point P.
we have taken arm of this angle 60 degree. Okay, but at this arm, where is this point P? Okay, so as you can see, PQ is 5 centimeter. So this 5 centimeter will decide the P point, the third vertex. Okay, so with the help of scale, you have to take radius in this compass of 5 centimeter. Okay, so taking Q as center, make an arc on this arm like this. Okay, where this arc cut this arm of this angle 60, that point is P. ओके, पी क्यू आपको क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको कंपास में रेडियस 5 सेंटीमीटर का ही लेना है और क्यू को सेंटर लेते हुए आर्क लगाना है यहाँ पर, जहाँ पर ये आर्क इस 60 डिग्री एंगल की आर्म को कट करिए, इंटरसेक्ट करिए, उस पॉइंट को नेम देना है पी. नाउ ज्वाइन पी टू आर. Like this. Now you can see PQR of given measurement. QR is 6 centimeter, angle PQR is 60 degree and PQ is 5 centimeter. Okay, so this is our required triangle. So let's move to the exercise 10.3, that is totally based on this construction when you have given two sides and the included angle. Okay, so let's see the exercise part. So exercise 10.3 question number 1 is construct triangle DEF such that DE is equals to 5 centimeter, DF equals to 3 centimeter and measure of angle EDF is equal to 90 degree. Okay, so let's see. तो इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल का नेम दे रखा है DEF. ओके, और दो साइड्स दे रखी हैं. DE आपको 5 सेंटीमीटर की दे रखी है और DF आपको 3 सेंटीमीटर की दे रखी है एंड एंगल EDF इज 90 डिग्री. सो EDF इज द included angle between these two sides DE and DF, that is 90 degree. Okay, first we draw a rough sketch. So here the triangle name is DEF. DEF. Okay, so in which DE is 5 centimeter and DF is 3 centimeter and angle EDF you have given 90 degree. Okay, so if we rotate this triangle in this way, suppose this point is D and this is E and this is F. Now see, DE is 5 centimeter and DF is 3 centimeter and angle EDF is 90 degree. जनरली जब भी हमें एंगल्स दिए जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मीन्स बेस पर ये एंगल्स फॉर्म हो. ओके, तो 90 डिग्री अभी जब हमने फर्स्ट रफ स्केच ड्रॉ किया तो 90 क्या है आपका अपर साइड जा रहा है. ठीक है, लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को हम इस तरीके से लें DEF तो ये एंगल आपका क्या है बेस पर है, हॉरिजॉन्टल. ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो हो गया आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, तो ये फर्स्ट वाला रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करेंगे. तो देखिए बेस यहाँ पर क्या है DE, हॉरिजॉन्टल साइड क्या है इस ट्राइंगल की DE 5 सेंटीमीटर. तो स्केल की हेल्प से हमें 5 सेंटीमीटर की साइड DE ड्रॉ करनी है. ओके, सो दिस इज D point and this point is E and this side is of 5 centimeter. Okay, now see at D there is 90 degree angle, so at point D we have to construct 90 degree angle. Okay, so for constructing 90 degree angle what we do, we take a convenient radius in compass and taking D as center draw a
semicircle like this. ओके, जहाँ पर ये सेमी सर्कल इस डी को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से इसी रेडियस का हमें एक आर्क लगाना है इस तरीके से. ओके, जहाँ पर ये आर्क इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट से अगेन हमें सेम रेडियस का एक आर्क लगाना है. तो देखिए ये जो हमने फर्स्ट आर्क लगाया है सेम रेडियस का, जिस रेडियस का हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ से हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. अगर डी पॉइंट को इस पॉइंट से अगर ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिल सकता है. और अगर हम इस पॉइंट डी और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो हम 120 डिग्री का एंगल मिलेगा. ओके, बट हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्या करना है 90 डिग्री का एंगल. सो 90 डिग्री के लिए आपको 60 डिग्री का आर्क लगाना है और 120 डिग्री का आर्क लगाना है. उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास में यहाँ पर जो पेंसिल टिप और स्केच टिप और पॉइंटर टिप के बीच की जो डिस्टेंस है ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा लेना है. ओके, नाउ टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर मेक एन आर्क लाइक दिस. अब हमें पॉइंटर की टिप इस 60 डिग्री एंगल की आर्क पर रखना है और एक आर्क लगाना है. फिर हमें 120 डिग्री की आर्क से एक आर्क लगाना है इस तरीके से. ओके, जहाँ पर ये दोनों आर्क आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को डी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है. इस तरीके से. तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया. चेक करते हैं प्रोटेक्टर से. तो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपको डी पॉइंट पर रखना है और इस प्रोटेक्टर की इनिशियल पॉइंट आपको डी ई पर रखना है. तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 90 डिग्री की आर्म है एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पर लाई कर रही है. इसका मतलब हमारा 90 डिग्री का एंगल एकदम करेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो अब हमने क्या एंगल ई डी एफ दैट इज़ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब यहाँ पर क्या इस आर्म पर 90 डिग्री की आर्म पर एफ पॉइंट को फिक्स करना है और एफ डी से कितनी डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर का. इसका मतलब स्केल की हेल्प से हमें राउंडर में कितना 3 सेंटीमीटर लेना है. तो पॉइंटर की टिप आपको 0 पर रखनी है और स्केच की टिप आपको 3 सेंटीमीटर पर रखनी है. तो ये डिस्टेंस ये रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर हो गया. अब डी पॉइंट को सेंटर लेते हुए आपको एक आर्क 3 सेंटीमीटर का इस 90 डिग्री की आर्म पर आपको लगाना है. ठीक है, जहाँ पर ये आर्क इस 90 डिग्री की आर्म को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नेम देना है आपको एफ. मीन्स दिस इज योर थर्ड वर्टेक्स. ओके, दिस इज द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल डी ई एफ. नाउ ज्वाइन ई टू एफ. ई को एफ से ज्वाइन कराना है. इस तरीके से. नाउ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल डी ई एफ इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ given measurement in which DE is 5 centimeter and angle FDE or you can say EDF is 90 degree and the side DF is 3 centimeter. Okay. Now question number 2 is construct an isosceles triangle in which the length of each of the its equal sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इन साइड्स की लेंथ आपको 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल यू हैव गिवन 110 डिग्री. सो 110 डिग्री वी कांट कंस्ट्रक्ट बाय कंपास, सो हियर वी विल यूज प्रोटेक्टर. ओके, सो लेट्स सी इट्स कंस्ट्रक्शन. So as we know, in the construction of a triangle, first step is to draw its rough sketch. So here is an isosceles triangle. Suppose this is, and we take its name as A, B, C. Okay. यहाँ पर जो base means horizontal side क्या है BC. तो इसका मतलब isosceles triangle है तो एक side हमें क्या लेनी पड़ेगी BC, जिसकी लेंथ हम जानते हैं. तो suppose 6.5 सेंटीमीटर इस साइड की लेंथ है. अब
दोनों साइड के बीच का एंगल आपको 110 रखना है। तो जनरली हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये साइड भी आपकी क्या हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, और इनके बीच का एंगल क्या होगा 110 डिग्री। ओके, तो इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बेस साइड मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड को ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स BC यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 6.5। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू ड्रॉ अ साइड BC ऑफ 6.5 सेंटीमीटर लाइक दिस, इट्स 6 and 6.5. okay, so BC we have drawn of 6.5 centimeter with the scale. Now we have to construct angle ABC of 110 degree. So here we will use protractor. So put the center of this protractor at point B and the initial line of this protractor at PC like this. Okay, see here we have to consider the downside scale of this protractor 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110. So 110 के सामने हम एक पॉइंट पुट कर देंगे। ओके, जनरली हम प्रोटेक्टर में डाउन स्केल और अपर स्केल में मिस्टेक कर जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो इनिशियल लाइन पर जब किसी साइड पर जब आप इनिशियल लाइन को पुट करते हैं तो 0 से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डाउन स्केल यूज़ करना है या अपर स्केल यूज़ करना है। तो ये हमारा हो गया 110 डिग्री का पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमें सेंटर पॉइंट मीन्स B से ज्वाइन कराना है इस तरीके से। तो ये एंगल आपका हो गया 110 डिग्री का। ओके, अब देखिए आपका साइड BC कंस्ट्रक्ट होगी 6.5 सेंटीमीटर की, एंगल 110 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट को फिक्स करना है। मतलब इस ट्राइंगल ABC का ए पॉइंट इस 110 की आर्म पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो वो कहाँ पर लाई करेगा, तो देखिए B से A की डिस्टेंस क्या है 6.5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें स्केल में कितना लेना है, मीन्स हमें कंपास में कितना लेना है 6.5 सेंटीमीटर। सो सी पुट दिस पॉइंटर टिप एट 0 and 6.5 put the sketch tip like this. Okay, so first we will extend it, then we will put an arc. So taking B as center, we have to make an arc of 6.5 centimeter like this. Okay, where this arc intersect this arm of 110 degree angle, give it name as A. Okay, now join A to C. So AB you have given 6.5 centimeter. So this is an isosceles triangle in which AB and BC are of 6.5 centimeter and the included angle means angle ABC is 110 degree. So this is the required triangle ABC. That is an isosceles triangle. Okay. Now question number 3 is construct triangle ABC with BC equals to 7.5 centimeter, AC equals to 5 centimeter and measure of angle C is 60 degree. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको दो साइड्स BC और AC दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल C आपको दे रखा है. Okay, so let's see its construction. So as we know, in construction of triangle, first we draw the rough sketch. Okay, so here first step is to draw a rough sketch. So as we know, the triangle name is ABC. ABC. Okay, now see,
BC you have given 7.5 centimeter and AC you have given 5 centimeter and the angle C you have given 60 degree. Okay? तो ट्राइंगल ABC आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है. So as we have done in 2 questions, same we have to do here. So first we will draw the line segment BC, means BC side we will first draw of 7.5 centimeter with scale. So see, this is 7 and it's 7.5. Okay, so name it BC and 7.5 centimeter. Now at point, it's C point and this is B point. At C you have to construct angle 60. So 60 degree angle we can construct from compass. So same we will use here. So take a convenient radius in the compass. Taking C as center, make an arc that will cut BC at any point. Okay. Now of same radius you have to make an arc from this point. Okay. 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रेडियस का आपको कोई भी कन्वीनियंट रेडियस कंपास में लेनी है और उस कंपास से कंपास की पॉइंटर की टिप जहाँ पर आपको एंगल फॉर्म करना है उस पॉइंट पर रखना है और पेंसिल की हेल्प से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है. फिर सेम रेडियस का आपको वो आर्क उस लाइन सेगमेंट को जहाँ इंटरसेक्ट करिए, मीन्स इस पॉइंट से आपको उसी रेडियस का आर्क लगाना है. जहाँ पर ये आर्क पहले से ड्रॉन आर्क को कट करिए उस पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए. इस तरीके से सकते हैं, इसे हम मेजर करके भी चेक कर सकते हैं. देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपको सी पॉइंट पर रखना है और इसकी इनिशियल लाइन में 0 डिग्री लाइन आपको BC लाइन सेगमेंट पर रखनी. तो देखिए ये लाइन आपकी कहाँ पर 60 डिग्री मैच कर रही है, इसका मतलब आपने कंस्ट्रक्शन 60 डिग्री का करेक्ट किया है. तो अब आपने बेस एंगल मीन्स एंगल C 60 डिग्री का ड्रॉ कर लिया है. अब क्या आपको सेकंड साइड AC कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर. तो आपको स्केल की हेल्प से कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस एडजस्ट करनी है. तो पॉइंटर की टिप आपको 0 सेंटीमीटर पर रखनी है और पेंसिल की टिप 5 सेंटीमीटर पे इस तरीके से. और C को सेंटर लेते हुए मीन्स टेकिंग C as center you have to make an arc of radius 5 centimeter. Okay, where this arc cut the arm of 60 degree, that point is A. Okay, now join A to B. So this is the required triangle ABC in which BC is 7.5 centimeter and angle C is 60 degree and AC you have given 5 centimeter. Okay. So that's all about today's session in which we have discussed how to construct triangle when we have given 2 sides and the included angle. Okay, and the exercise questions 10.3 exercise. If you have any query doubt related to this concept, this exercise, then can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss a new construction when you have given 2 angles and the included side and exercise part. Till then keep watching my channel. Thank you.